welcome to today's lecture. Okay, so today is the second lecture of NCERT class 10th topic. NCERT class 10th, as we discussed, we started in the previous lecture 2. So in previous lecture we covered development, and some students have submitted their answers also. I'll be checking them. I got a lot of answers today, so probably by tomorrow or day after I'll be checking the answers and giving you the feedback. Today we'll cover sectors of the Indian economy. That is the agenda for today. Now tomorrow we'll cover all three chapters, that is money, credit, globalization. Now these are small chapters. Chapter 2 is the biggest chapter among all and the most important chapter for the examination also. Now let's understand the sectors of the economy. Now we all know that Indian economy, or for that matter economics, is the study of economic activities. So what do? We calculate the economic activities and we quantify the value of the economic activities. और वो जो भी economic activities होती हैं, we take the total of that. So we all know that in India we have primarily three sectors: agriculture, industry, and services. So whatever economic activities are happening, if you can imagine the boundary of India, and in that boundary of India, whatever economic activities are going on, we're going to take the total of those activities, and that is how GDP is calculated. Now, but before, let's understand current state of the India's economy. So what exactly Indian economy is? So if you have to, in a very layman terms, if you have to, ask what is the status of India's economy? So we'll say that India is a relatively, a decent economy with almost 3 trillion in terms of GDP. ये हमारी total size of the economy का size है economy का in terms of economic activity. Indian economy, is the fifth largest economy in the world right now. अभी recently we surpassed, England, or rather Britain. So India is the fifth largest economy in the world, and average per capita India. If I divide the economy with the income of population of the country, the average जो हमारे यहाँ लगभग $2,100 is the average income of an individual. So if you talk about the current state of India's economy, India is one of the fastest growing economy. Now we are discussing about the pre-COVID period. Okay, अभी COVID के बाद क्या होगा? Here also India, there's a likelihood that India, is going to grow the fastest among all the economies. So India was one of the fastest growing economy in the world, and we have huge favorable demographic, which means कि population का status क्या है? Now, if we talk today, as of now, we can say that around 70% of India's population is under the age of 35. Can you believe? So we have so much young. So India is a young country. India is a country with young population. In fact, the median age of India is 29 years. Median age क्या होता है? If I divide the population into two part, मान लो पूरा population 100 है. If I divide into two part, 50 and 50 हमने divide कर दिया. So 50% people of India are below 29 and 50% people are above 29 years. तो आप देखो कितना इंडिया के पास कैपेसिटी है. All these young people will add to the economy future में. Similarly, if I talk about China, it is around 37. So this is China. Similarly, 42 is of Japan. Now these are relatively an aging population. यहाँ पे young population कम है. Okay, there's an average. Now here Japan is going to face even more, okay, because tomorrow after a decade or so उनके पास young population रह नहीं जाएगी. But India is a very young country with huge human capital, human resources, young population, and we have huge catch-up potential. Okay, क्योंकि हमारा जो average income है वो भी कम है. So we have a capacity to ensure that average income of the country also goes up. तो average income, अभी जैसे मान लीजिए हमारी average income $2,100 है. Theoretically, the possibility is that we can go up to $10,000, $15,000. अगर हम अगले 2 decade में हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं. So everybody in India is going to work hard, will get more skill, their incomes will improve, and eventually they will contribute to India's economy, and vice versa, they will contribute to the
एक इंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड जीडीपी में भी हम लोग ऐड करेंगे. सो वी कैन से विद लॉट ऑफ सर्टेनिटी दैट इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल, कंसिडरिंग दैट हम कुछ ऐसा कोई ब्लंडर ना करें, कोई ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई मेजर सेटबैक ना हो. Okay, so that is, so India is a huge potential. India is 21st century India का माना जाता है, ऐसा बोला जाता है. Now world data के हिसाब से India is the sixth largest. Now recently we became fifth largest. ये डेटा जो है अभी world data का last का डेटा है. India is around 2.9 trillion economy, and we surpassed the country whom under which we were colonial rule for under colony for almost 2 centuries. And India's, we based on the pre-COVID data, we can say that India's average growth outlook was 7.5%, though it came down to 5%. Okay, so हमारा एक, there's a huge potential in the economy. Yes, there have been temporary setbacks in terms of economy और ये सारा, but overall India is doing well in terms of economic growth. Likely to surpass, as I mentioned, we have already surpassed. Just the data came few months ago, so we have already surpassed. But वो data हम जो यूज करेंगे वो हम वर्ल्ड बैंक डेटा या फिर इनका डेटा हम ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे. सो वी कैन से दैट इंडिया हैज अ ह्यूज पोटेंशियल. नाउ रिमेंबर, number one is US, number two is China, number three is Japan, number four is Germany, and of course India and UK were very close, you can see. And you can say now India has surpassed UK, and UK नीचे आ गया. Why? Because India is growing faster and UK is growing slower, so automatically India will surpass UK. 10 years ago India's GDP was half of the France. तो जो आप सोचो कि फ्रांस की जैसे डेवलप्ड नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस विल नॉट ग्रो मोर देन 2-3%. ये उनका सैचुरेशन है, इससे ज्यादा वो ग्रो नहीं करते हैं. कंट्री लाइक इंडिया कैन ग्रो 7%, 8%, 9% तक हमारी इकोनॉमी ग्रोथ का पोटेंशियल है. सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ इंडिया. ये अलग बात है दैट वी आर स्टिल हावरिंग अराउंड 6 to 7% ग्रोथ में हम हावर कर रहे हैं. सो दैट ग्रोथ इज लेस, एंड फॉर वट एवर रीजन वी हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो अप टू 9%. बट डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है. And the reason why developed countries cannot grow at a very faster pace is because they have reached a saturation level. एक saturation level पे पहुंचे हुए हैं. So the probability of those countries growing at a very high rate is a very distant possibility. तो अभी हम लोग ये now these data and understanding is based on the various predictions and various data that we have witnessed. But we'll focus on how we have come here. हम यहाँ तक आए कैसे हैं? What is the history of India's economy? 19th 18th century से लेके 19th century से लेके in general क्या हुआ है? How the whole thing has evolved 18th century से लेके 21st century तक, how world economy has done, or rather how the countries have done. For example, we have three kind of categories. One is developed nations, जो country already they have reached a stage where the average income is higher. Previous class में हमने discuss किया था, the developed nations are nations where average income is more than $12,000. तो एवरेज इनकम जिनका $12,000 से ज्यादा है वो डेवलप्ड नेशंस है. 12,000 से लेके 1,000 के बीच दे आर डेवलपिंग नेशंस. सो इंडिया इज 2,000, सो वी आर डेवलपिंग. लेस देन 1,000 इज अ लोअर इनकम कंट्री. सो बट हाउ दिस ऑल हैज चेंज दैट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो बट बिफोर गोइंग, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर. पहली बात तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. वट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी वी डू, वी प्रोड्यूस समथिंग. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हम कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग either goods or services. Now these production can be categorized into three major sectors based on economic activities. हम तीन सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. One is the primary sector, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं. The second is the secondary sector, we call it as industrial sector. The third is the tertiary sector, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं. तो इन तीनों सेक्टर्स को हम डिटेल में भी देखेंगे. So these are based on economic activities. For example, अगर आप फार्मर हो, you are involved in primary sector, or you are working in a factory as a manager, so you are involved in secondary sector, or you are working in a IT or BPO company, or for that matter you are giving services, आप बैंक में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, कंसल्टेंट हो, so you are in the tertiary sector. So people are employed in three categories. आप इन्हीं तीन categories में आप employ होगे. Tomorrow you will get into government jobs. So government job में भी mostly tertiary sector में आपको job मिलेगी. Okay, because government is services, and hence you get employed in the tertiary sector. Now then we based on employment condition, यानी अगर एम्प्लॉय आप होते हो तो आपका क्या सेक्टर है? ऑर्गेनाइज सेक्टर हो सकता है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर. नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर? एनी एम्प्लॉयमेंट व्हिच कम्स अंडर द गवर्नमेंट लॉज, द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और आपकी इनकम डिफाइंड है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगते हैं, तो यू आर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. इंडिया में around 10%, 12%, different data में, but average you can say 10% people are in the organized sector.
90% पीपल आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो लोग भी इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। सो विल सी द डिफरेंस एंड इन द कमिंग स्लाइड्स। देन बेस्ड ऑन द ओनरशिप, ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वी आर प्रोड्यूसिंग एसेट्स हियर, एंड व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एसेट्स, हु ओन्स दीज एसेट्स? ओके, अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं, हम लैंड की बात करते हैं, हम मशीनरीज की बात करते हैं, हु इज ओनिंग ऑल दैट? इफ गवर्नमेंट इज ओनिंग, सो विल से इट इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल रेलवेज की अगर हम बात करते हैं, if we talk about maybe Air India, so it is a public sector. So we have around 300 public sector units in India, to be 290, 291 to be precise. And at union level, तो central PSUs almost 300 है, around 900 जो PSUs हैं वो state के भी हैं, okay, state government के. So those are public sector, which means ownership of the factory or factory या जो भी production activity है या जो भी service providers हैं, they are by under the government of India. Then we have private sector, where private people own. For example, there are private companies, firms, Reliance, State, Tata, या फिर कोई छोटा मोटा फर्म आप भी चलाते हो, that is private sector. Then there could be joint sector, जहां we have a new trend of PPP, which is हमको जो कहते हैं public private partnership. Okay, so we have a joint ownership. For example, जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हो, तो दिल्ली एयरपोर्ट में so there are two firms. One is the government ownership है और एक private organizations भी है जिनका joint ownership है. They have different areas जहाँ पे वो operate करते हैं. So that could be PPP model. So public private partnership यानी joint sector की तरह work होता है. So economic activities को हम लोग, the primary concern will be to understand the three sectors: primary, secondary and tertiary sector. So what is primary sector? Any sector which is based on natural एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज, आप लैंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या लैंड को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरी, ओके, तो ये सारा, या एग्रीकल्चर बेस्ड कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, एलाइड एक्टिविटीज है, सो दोज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर. सिमिलरली, okay, so Sajal has a question, sir. Deemed university are joint sector? No, no. Deemed university, which means the status is equivalent to a university. Okay, so your deemed university mostly are your private universities होती हैं, but if under UGC there is a concept of university, and there are deemed university which is almost equivalent to university. So mostly इंडिया में जो deemed university वो private organizations है. Okay, ये 2005 के बाद ये deemed university का concept start हुआ था. Now coming to primary sector, so this is primary sector जो भी agriculture based activities होंगी. Now primary sector provides raw material to the secondary sector. मान लीजिए आप, if you have wheat, जैसे अभी wheat का season है, okay, so this is a rabi crop है, तो wheat आ रहा है, so wheat से आप flour बनाओगे, with from flour you will have maybe biscuits, okay, or the entire food items, so those will be the part of industry. तो ये industry से जुड़ा हुआ है, biscuit making is a biscuit making industry. ठीक है, आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो देयर इज ऑल सेकेंडरी सेक्टर. बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स. ठीक है, ये गुड्स जनरेट कर रहे हैं. देन कम्स द सर्विसेज सेक्टर, दे प्रोवाइड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, नाउ हम गुड्स को हम विजिबल सेक्टर भी कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड विजिबल्स, जो दिख सकता है, दे आर टैंजिबल्स आल्सो. ओके, सो टैंजिबल मींस यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, बट सर्विसेज आर इनविजिबल्स. आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, सो दिस विल कम अंडर द सर्विसेज सेक्टर, इनविजिबल सेक्टर में आता है. You cannot touch it, you cannot feel it, you can feel it but you cannot touch it. Okay, so that is invisible. So tertiary sector is invisible sector. Now let's go one by one. So agriculture related activities are primary sector. Agriculture, dairy, fishing, they are called primary sector. Why? Because it acts as a base for all the products. कुछ भी economy activity होने वाली है, तो these are base activity. The people engaged in primary activities are called red collared worker. इनको हम red collared workers कहते हैं. Similarly, secondary sector, the raw material of the primary sector are used as inputs. तो हम लोग ये जो raw material है primary sector के input की तरह use करेंगे, and the secondary sector will be formed. It involves various industries, hence it's called industrial sector. Okay, and people engaged in secondary activities are called blue collared workers. ठीक है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं, so those are called blue collared workers. Similarly, फिर है tertiary sector. Now tertiary sector आया कैसे? पहली बात तो tertiary sector, there are two kind of categories. One are the basic services. Okay, basic service हो सकता है, and then there are some sector which supports the primary and secondary sector. Okay, so primary and secondary sector कुछ supporting sectors होते हैं. For example,
the development of primary sector and secondary sector are done through tertiary sector. For example, अगर आप एक farmer हो, and as a farmer you are producing, आपने 100 क्विंटल आपने राइस जो है प्रोड्यूस किया through your farm, and you keep 10% for your personal consumption. आपने 10% रख लिया personal consumption के लिए, शायद वो भी ज्यादा है, maybe 5%, and rest you sell to the market. When you sell to the market, you need vehicle, you need transport. So transport is services. Okay, you might put in a cold storage, or you might put it in a maybe warehousing, so that will also come under the category of services. You might the person whom you are selling वो आपको check में payment करेगा या online payment करेगा, so you might involve banking. You will do trading, so you go to mandi system, वहाँ पूरा trading होता है. So mandi is a place which facilitates trading. आप मंडी में there are people who उनकी shops होती हैं, and they act as a facilitator. They will ensure कि जो producer है and seller है दोनों साथ मिलेंगे, sorry, purchaser है दोनों साथ मिलेंगे, and that is how activity. So that trade will also come here. You might use phone for going when the market is opening, या फिर आप normal communication use करोगे. So all these are services sector. होता क्या है कि जब भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, ऑटोमेटिकली द सर्विस सेक्टर और द टर्शियरी सेक्टर विल ऑटोमेटिकली ग्रो, व्हिच मींस यू कैन से देयर इज अ डायरेक्ट को लिंकेज बिटवीन द टर्शियरी सेक्टर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. जब भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करता है, the activities linked with those sectors in terms of services will also grow. So इसीलिए हम कहते हैं they generate services, they called service sector. Now ये supporting activities है. If you look around always, आप कहीं भी ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि हर प्राइमरी सेकेंडरी में भी कोई ना कोई सर्विसेज इन्वॉल्व हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर मेकिंग कार, आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो. Now it is an industrial activity. कार मैन्युफैक्चरिंग इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कार प्रोड्यूस कर रहे हो, बट इट माइट ऑल्सो इन्वॉल्व लॉट ऑफ सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग ऑफ कार. ठीक है, तो कार का डिजाइन में भी यूरोप में हो रहा है, सो देयर इज अ ह्यूज कंप्यूटर डिजाइन है, न्यू टेक्नोलॉजी हो रही है, सो डिजाइनिंग माइट कम हियर. सो तो आप कहोगे अरे ये तो प्रोडक्शन एक्टिविटी, बट हियर आउट ऑफ 5 लाख आपकी 5 लाख रुपीज की कार है, मे बी 50,000 वो उसके डिजाइनिंग में गया है. सो यू कैन से 50% इज ऑफ द सर्विसेज एरिया. पहले शायद डिजाइनिंग का कंसेप्ट इतना नहीं था, मे बी द मॉडर्न मेथड्स हैव नॉट कम. Okay, so it may also include essential services that may not directly help in the production of goods and services. अब इसके अलावा these are supporting activities, इसके अलावा भी कुछ activities हो सकती हैं. For example, education, healthcare, administration. बढ़िया. एजुकेशन, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, ये सारे सर्विसेज क्या है, जुड़े हुए हैं. ओके, मेनी टाइम्स पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर. ये सारे सर्विसेज, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, यानी एसेंशियल सर्विसेज में भी ये आ जाते हैं. तो ये कैसे डेवलप हुए, दैट इज समथिंग अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके अलावा प्राइमरली देयर आर थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर सेक्टर्स आल्सो. पहली बात तो दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, ये सारे सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. द सेकंड इज द सर्विस सेक्टर जो है, जो टर्शियरी सेक्टर है, उसको हमने दो और सेक्टर में डिवाइड किया, दैट इज क्वार्टनरी एंड क्यूनरी. शायद आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा. क्वार्टनरी मींस व्हिच इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल नॉलेज इकोनॉमी हो गया, आईटी हो गया, आप आईटी में काम करते हो, मे बी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, दैट ऑल विल कम अंडर क्वार्टनरी सेक्टर. It includes education, training, development of technology, R&D, research and development. Okay, it is a process which enables entrepreneurs to innovate better manufacturing process. आप consulting कर रहे हो, you are telling how to improve consulting, you are telling how to improve the services, you are into a part of intellectual economy. Right now जैसे अभी कोविड क्राइसिस चल रहा है, so there are more than 120 projects are going on. और ये 120 प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं, इंडिया के आईआईटीज में चल रहे हैं. क्यों चल रहे हैं? सो दैट दे आर एडवाइसिंग बीपीपी कैसे बनाया जाए, कैसे बेटर पीपी बनाया जाए, कैसे सैनिटाइजर अच्छे से बनाया जाए, कैसे लो कॉस्ट सैनिटाइजर हो. अभी आईआईटी दिल्ली हैज मेड अ टेस्टिंग किट फॉर कोविड 19. जो टेस्टिंग किट है वो भी इट्स अ लो कॉस्ट, विद इन 300-400 में टेस्टिंग किट आ जाएगा. सो
Now these are people are working as innovators, वो R&D पे वर्क कर रहे हैं, they are trying to improve the manufacturing process, कोई नया तरीका आया मैन्युफैक्चरिंग में improve करने का, so that all will come under the corporate sector. In fact इसको knowledge economy भी कहते हैं, इसको हम लोग intellectual labor का भी category put करते हैं. Okay, so they are based on human capital, IT, knowledge, education. So ये tertiary sector का ही एक part है. In books, in many books you will not read it, but अगर कहीं से आता है तो you should understand. Voice based testing from DY Patil. Okay, okay, fair enough. Now, then there are culinary sector. Culinary sector is जहाँ top decision making होता है. For example, you go into government. आप government में जा रहे हो, आप industry में जा रहे हो, आप FICCI में काम करते हो. You're part of CIE. You are bureaucrat. Okay, you are politician. You are a member of parliament. So you are involved in the top decision making of the country. It includes government which passes legislations. They are top decision makers in industry, commerce, education, and they are called as gold collared professionals. तो ये तीन ही होती हैं ब्रॉडली, बट देयर आर फाइव आल्सो. वो तीन जो थर्ड सेक्टर है उसको हमने और क्वांटिफाई करके उसको वी हैव मे बी मेड थ्री न्यू लेयर्स, दैट इज टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर एंड क्यूलरी सेक्टर. नाउ ये तो बेसिक लेवल पे हो गया, ये बुक्स में आप कहीं पढ़ सकते हो. बट माय कंसर्न टुडे इज दैट हाउ वी हैव रीच्ड हियर, हम यहाँ तक आए कैसे हैं, हाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, हाउ दीस सेक्टर्स वर डेवलप्ड. अब इसको एक कहानी की तरह मैं पूरा समझाता हूँ, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग. अभी तो हम लोग क्या करते थे, मे बी 500 years ago or maybe 1000 years ago, okay, or maybe let's say not 1200 years ago, 2000 years ago. So we were into primitive mode of occupation. Hunting gathering था शायद. Okay, so hunting and gathering was there. Okay, there was, आप रोज खाते थे और रोज रोज you were hunting, every day you were gathering and you could eat. Barely कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था. So there was a lot of challenges. Then tools, modern tools were created, and suddenly you found that agriculture as an activity came in. So first agriculture revolution आया. First agriculture revolution में जो हम traditional agriculture कहते हैं, that kind of started. You learned how to produce something. फिर आपने traditional agriculture में produce करना start किया. पहले raw खाते थे आप, you used to eat it same way. Then you started, learned about cooking. आपने cooking भी learn किया. But remember, traditional agriculture था, the thing was that you had very limited knowledge and the output was also less. Traditional agriculture मतलब archaic techniques थी, there was no technology involved here. Production was rule of thumb based था, there was no scientific approach here. So that was traditional agriculture. तो ये जो traditional agriculture था, ये this continued for almost, you can say, like इस 2000 year अगर हाँ आज बात करते हैं तो you can say almost 1700 years तक ये चला. Here also in traditional agriculture, right from hunting gathering, traditional agriculture में भी धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुई. It's not that it was completely traditional. Scientific methods came, but activities, economic activities भी बढ़ने लगी. But mostly it was agriculture based. Agriculture मतलब आप merely आप nature को, land को use कर रहे हो, या producing, या fishing कर रहे हो, या hunting कर रहे हो, gathering कर रहे हो, या फिर आप you are using, but agriculture में output भी generate कर रहे हो तो traditional nature में ही है. Then this traditional agriculture got started developing with the advent of some new tools. Machine आना start हुए, new tools आना start हुए. Agriculture methods also progressed. ठीक है, new methods came in. ठीक है ना. Then agriculture methods, new methods came in, और इस new methods से चीजें evolve होने लगी. And when these things got it started evolving, then what happened? A time came कि ये जो agriculture है, ये हमारा modern agriculture की तरफ हम जाने लगे. Now, one of the aspect of modern agriculture was that we started generating a lot of surplus. हमने surplus generate start किया. Okay, so traditional agriculture में they were merely we had subsistence approach. यानी हमारे पास surplus नहीं था. Subsistence का मतलब ये है कि whatever we need हम उतना ही produce कर रहे हैं. Even if we producing surplus बहुत थोड़ा था. Then modern agriculture led to surplus production. Now, अब मान लो एक छोटा आप एक farmer हो and you're producing surplus. आपकी requirement है maybe 5% of the produce and rest 95% you are selling. अभी आप सेल करोगे, ठीक है, अब सेल करोगे, किसको सेल करोगे, मार्केट को सेल करोगे. एंड दैट इज हाउ मॉडर्न एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन बढ़ा. रिमेंबर दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ओके, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा. नाउ पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एट द सेम टाइम द मॉडर्न एग्रीकल्चर grew
अब ये पीरियड हो गया 1750 से लेके 1850 का पीरियड आया। इस पीरियड में क्या हुआ, एडवेंट ऑफ मशीन केम, मशीन हुई। इस पीरियड में भी देखो ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बोलते हैं, द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आईआर। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, व्हाट इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वे देन अ न्यू वे। अभी तक क्या हो रहा था कि ये पूरे प्रोसेस में विच हैपेंड फॉर मे बी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, एग्रीकल्चर वाज अ प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन, या आप कह लीजिए कि एग्रीकल्चर वाज अ डोमिनेंट ऑक्यूपेशन, यानी सब मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, एडवेंट ऑफ मशीन केम, स्टार्ट विद स्टीम इंजन, स्टार्ट विद मॉडर्न मशीन्स जो देखने को मिलती हैं। देन लेटर ऑन कुछ डेकेड्स के बाद पावर केम, इलेक्ट्रिसिटी जो हम कहते हैं। तो अब ये जब होने लगा, दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द वे प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज जैसे हो रही वो पूरा बदल गई। अर्लियर वट एवर यूर प्रोड्यूसिंग इट वाज हैंडमेड, एंड उसकी जो वैल्यू था बहुत कम था। नाउ हियर यू आर हैविंग अ मास फैक्ट्री मेड प्रोडक्शन। रिमेंबर पॉपुलेशन इज आल्सो गोइंग, ये सारी चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक तरफ आपका एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, एंड एग्रीकल्चर में मॉडर्न एग्रीकल्चर आ गया, प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग, द प्रोडक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर से एक और चीज देखने को मिली, दैट पीपल हु वर वर्किंग इन एग्रीकल्चर दे वर नॉट नीडेड एनीमोर, एंड हेंस दे वर फोर्स्ड टू लीव एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, okay, then it percolated to other countries, and here England में they were forced to leave the the agriculture activity। उसमें भी क्या किया था गवर्नमेंट ने, फोर्स किया लोगों को, एक इनक्लेवमेंट मूवमेंट करा। उस इनक्लेवमेंट मूवमेंट में इंग्लैंड में क्या हुआ कि जितने भी एग्रीकल्चर लैंड थे, what they did that they started giving land to big people, जो जिनके पास लैंड ज्यादा था उनको सारा लैंड दे रहे थे, and people who had small piece of land they had to virtually leave their land, and they were forced to leave, and they said come to urban area, वहां हम फैक्ट्री लगा रहे हैं और फैक्ट्री में हमें लेबर की जरूरत है, वी नीड लेबर, वी नीड पीपल हु कैन वर्क इन द फैक्ट्री, एंड दैट इज वेयर नाउ दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंड ओवर डेकेड्स। और यहाँ पर मास फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, एंड ऑल दीज पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, सो कॉल्ड रूरल एरियाज, स्टार्ट मूविंग टू अर्बन एरियाज। नाउ अर्बन एरियाज अभी डेवलप हो रहे थे, अर्बन एरियाज वो इंडस्ट्रियल टाउन्स बेसिकली। नाउ द फैक्ट्रीज वर सेट अप। Now remember here, government, everybody, ये सब लोग पुश कर रहे थे, young people came, the new inventors came, innovation started happening, मशीनरी जब डेवलप होने लगी तो people in these sectors, they got out of innovation, and innovation जो इतना unprecedented level पे innovation हुआ, the innovation which happened in 50 years, इस लेवल ऑफ इनोवेशन या डेवलपमेंट जो हुआ है, दैट हैड नॉट हैपेंड इन पास्ट 3000 ईयर्स। जितना पिछले 3000 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतना 50 ईयर्स में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। द मॉडर्न मशीन्स व्हिच केम, it changed the way production was organized, as I discussed, and mass production होने लगा। Remember, all these people when they came, to factory mode of production, तो वहाँ mass में जब production start होने लगा, then the next thing which happened was that they had to look for market, because जो पहला consumption था, they did consumption for themselves। वहाँ से consumption उनकी जब अपनी जरूरत खत्म हो गई तो उनको market की जरूरत थी, and that is where, now remember, ये they were constantly looking ways to capture the world। इंग्लैंड को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, there were explorers also, England, Portugal, Spain, France, all these countries, ये सारी जो countries थी, the countries all were nearby, and all these countries were the first mover advantage, इनको first mover advantage मिला। they were able to organize production, industrialization पहले वहां start हुआ इंग्लैंड में, then came to France, and all these countries हर जगह industrialization होना start हो गया। the beneficiaries were of course England। Why England got the advantage in the beginning? Because England had good control, उनका navy बहुत strong था, because they had a strong navy they could easily go to any part of the world। Since the technology got developing, also they could use modern weapons better होने लगे। Now remember, there's a concept of population of technology। अगर आप कोई मशीन बना रहे हो तो वो मशीन, you are not making only machine, you are making a technology, and that machine technology can be used at anywhere। आपका कार का इंजन हो या एरोप्लेन का इंजन हो, या एक पानी के पानी का मोटर का इंजन हो, या फिर आपकी मिक्सी का इंजन हो, या आपके ऑल द इंजन विल हैव अ सेम ऑलमोस्ट मेथोलॉजी। आपकी कार का, यस, एक ट्रेन का इंजन कहीं बड़ा होगा, हाई पावर होगा, अदर इंजन माइट बी लोअर, सम इंजन माइट बी मूविंग अ व्हीकल, अदर इंजन माइट बी माइट बी यूजिंग सम अदर एरिया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट वो हर जगह देखने को मिला। Then the same technology could be used in agriculture also। Now this was a period of invention,
जब आपको कुछ नया करते हो एंड यू स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट, innovation was encouraged, R&D was innovation encouraged. This was also a period where a new scientist, new young innovators, new medical science, science as a subject, ये सारा develop होना start हुआ and modern scientific learning, scientific thinking started happening. और सिर्फ ये development science में नहीं हुआ, the development happened in literature, the development happened in in all the areas जो भी आप imagine कर सकते हैं. For example, press का growth होने लगा. Modern languages also came. For example, English as a language. Earlier Latin था, but English as a language started coming. ठीक है, तो English as a language became, अच्छा, English was an easy language, it was simpler to learn and hence easily जो है होने लगा. Now earlier book पहले कैसे लिखी जाती थी? Book were written by hand, so you could not, so आप limited copy होंगी book की. Now you have a printing press. Now suddenly from one copy you can produce thousands of copies in matter of few hours or few days, and suddenly the language also started spreading and people who could learn and educate themselves, that also started happening. And that is why it is called revolution, which means a complete, or you can say a transformation at social, economic and political level, at all level. यानी social level पे भी transformation हो रहा है, political level पे transformation हो रहा है, and economic level पे भी transformation हो रहा है. And this transformation was unprecedented across, and everybody was getting benefit. Now remember, industrial revolution का advantage क्या था कि the modern production was organized and you could see everywhere कि things were developing. अब population growth भी होने लगा. देखो यहाँ एक चीज और होने लगी. Modern science also came, modern medicine also came. Modern medicine आई, so automatically the treatment came in, vaccines आने लगे, जो mass death होते थे, for example, 15 century में जो bubonic plague आया था यूरोपियन नेशंस में, almost half of the population was wiped out. अब ऐसा नहीं हो रहा, because suddenly you have a vaccine, you have medicine, and that medicine could treat you. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टार्ट इंक्रीजिंग, आपकी जो बर्थ रेट जो है बढ़ना स्टार्ट हो गई. Sorry, birth rate increased, and also at the same time the death rate came down. So there was a explosion of population across. Suddenly population बढ़ने लगी, and these population they could not work in agriculture, so they were forced to move to industry. और इंडस्ट्री में एक एडवांटेज मिलने लगा कि इंडस्ट्री में हमें लोगों की जरूरत थी, because this industry required labor in huge numbers. So all that started happening. Now remember, जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होती है तो इट ब्रिंग्स चेंजेस टू अदर एक्टिविटीज एज वेल. फॉर एग्जांपल, व्हेन योर आपका जॉब चेंज हो रहा है, यू आर इन रूरल एरिया, सडनली यू हैव टू गो एंड वर्क इन अर्बन एरिया. व्हेन यू मूविंग टू अर्बन एरिया, ऑटोमेटिकली आप यहाँ क्या देख रहे हो, दैट नाउ यू हैव टू लीव योर फैमिली. बट वंस यू आर मैरिड, यू विल टेक योर इमीडिएट फैमिली. आपने वाइफ को या अपने बच्चों को लेके जाओगे. लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली कैन नॉट मूव, बट यू कैन मूव. नाउ यू गो देयर. Now you are working, your wife is also working in the factory, and that is how maybe children are sitting at home, working at, maybe just playing at home. Then government ने सोचा अब क्या करें, तो चलो modern education start करते हैं. These children should go to school, and that is how modern education came, modern schools came. The children could go to school, you were working in a factory, and this started developing and evolving. So जो industrial revolution का phase था वो 1850 से लेके 1750 से लेके 1850 के phase में रहा, and this how, so we can say, अब क्या था, अभी तक हमारा जो प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर. नाउ इट चेंज, वे प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन इज इंडस्ट्री. यानी प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या, अगर हम 100 बोल रहे हैं, लेट्स से दिस 100 इज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट. पहले मोर देन 50 से ज्यादा आउटपुट कहां से आ रहा था, एग्रीकल्चर से आ रहा था. नाउ आउटपुट जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है. सो अर्लियर एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं, इन द पीरियड टिल 1850, आप कह लो till 1850. So agriculture was a predominant, या कह लो dominant occupation था, which means out of total output, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक टोटल आउटपुट है, और आउटपुट किस फॉर्म में आता है, वो जीडीपी के फॉर्म में आता है. So this total output was primarily from agriculture, which means more than 50% was coming from agriculture. इंडस्ट्री एंड सर्विसेज थी, या हैंडमेड इंडस्ट्री था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, छोटा मोटा इंडस्ट्री था, सर्विसेज भी थी, ट्रेडिंग वाज यूज्ड टू हैपन, but they had less than total 50% था. But after 1850 things started changing. In fact 1750 से लेके 1850 के पीरियड में ही ये चेंज होना स्टार्ट हो गई. And by the time 1815 came, all these economies which were agrarian economy, they became industrial economy. Industrial economy का मतलब ये है कि now the value of industry is 50% or more, और एग्रीकल्चर और सर्विस मिला के वो 50% था. Now what does it mean? क्या हम ये कह सकते हैं कि
तो दिस सिचुएशन विच मीन्स कि क्या आउटपुट एग्रीकल्चर से नहीं बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा दोनों से, एग्रीकल्चर से ही बढ़ा, बट इंडस्ट्रियल आउटपुट इज वे टू हाई. फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉटन लिया 1 kg का, और मे बी आपने 100 kg कॉटन लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ कॉटन इज मे बी 1000 रुपीज, लेट्स से. बट यूज दिस 100 kg ऑफ कॉटन यूज इन अ टेक्सटाइल मिल, और टेक्सटाइल मिल से आपने शर्ट्स बनाई, and you made 50 shirts. Okay, and every shirt is worth equivalent to 100 rupees, which means आपने 5000 की shirts बनाई, which means the agricultural input can convert into 5 times of industrial output. So automatically, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से 100 कंट्रीब्यूशन 1000 कंट्रीब्यूशन है, बट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 5000 है, ऑलमोस्ट 5 times है. सो वी कैन से हियर विद सर्टेनिटी दैट प्रोडक्टिविटी और आउटपुट का जो वैल्यू है वो इंडस्ट्री का कहीं ज्यादा होगा, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ द आउटपुट, जो जीडीपी है वहां पे हमको इंडस्ट्री का वैल्यू ज्यादा नजर आ रहा है. एंड दैट ऑलमोस्ट हैपेंड इन द टिल 19 आप कह लो 1950 तक चला, व्हिच मींस इंडस्ट्रियल आउटपुट वाज देयर. ऑल द कंट्रीज वेयर इंडस्ट्रियल आउटपुट वाज मोर देन 50%, दे वर सपोज्ड टू कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. ठीक है, ये डेवलप्ड नेशंस थे, यही इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे. अच्छा, इस पीरियड में 1850 से लेके 1950 के पीरियड में ऑल दीज कंट्रीज व्हिच वर डेवलप्ड, दे आल्सो मेड कॉलोनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज इनको अपने जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, इनके जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स है, दे नीड मार्केट फॉर देम, एंड व्हेन दे नीड मार्केट फॉर देम, दे हैव टू कैप्चर देम. बिकॉज आज का मॉडर्न सिस्टम तो है नहीं कि यू आर डूइंग ट्रेडिंग. ट्रेडिंग वाज देयर अराउंड दैट टाइम, बट it was a colonized system. For example, India was under British colony. India was a British colony for almost 2 centuries. So you know that India से क्या हुआ? India used to be so provider of raw material. हम लोग raw material provide करते थे, और raw material provide करते थे, and फैक्ट्री वहां का फैक्ट्री में बन के देन द सेम आइटम यूज्ड टू कम टू इंडिया, और इंडिया वाज अ बिग मार्केट. नाउ ऐसा क्यों था? नाउ दैट वाज, रिमेंबर, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड की जो एटमॉस्फेयर है या उनका जो क्लाइमेट है, दे इट वाज ओनली मे बी 4 to 5 months का ही पीरियड पॉसिबल था वहां पे, बिकॉज द कोल्ड यूज्ड टू बी एक्सट्रीम देयर. सो द एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर वहां फ्लश भी अगर होती भी थी तो 4-5 months होती थी. एंड when the factory started producing on mass scale, they were needing raw material which was not available domestically. So that is where they felt that we need to capture the other countries which can produce the raw material for our factories. Naturally, they had technology, they have resources, they had modern weapons, and they could easily capture the country. And they came to India. अब India is a provider of raw material, और इंडिया रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रहा है. ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल उनके यहाँ से नहीं आ रहा है, उनके यहाँ से भी आ रहा है, बट दे नो दैट द काइंड ऑफ रॉ मटेरियल दे नीड कैनॉट बी मेट एट देयर लेवल. दैट इज हाउ. So all the developing nations or colonized nations or underdeveloped nations जो उनके कंट्रोल में थे, they were the provider of raw materials across. कहीं से टी कहीं से आ रहा है, कहीं से आपका कॉफी आ रहा है, कहीं से कॉटन आ रहा है, कहीं से इंडिगो जिसको नील कहते हैं वो आ रहा है, बिकॉज यू for coloring of items you needed. So that is how the factory motor production started. इंग्लैंड में हुआ, फिर फ्रांस में हुआ, फिर all the countries, the nearby countries. The same people went to इंग्लैंड वाले कुछ लोग थे वो they went to USA. ठीक है, लेबर्स इनको चाहिए थे तो they went to Africa, उन्होंने लेबर्स को लिया, उन लेबर्स को यूएसए लेके चले गए. So we have a maybe African Americans living in there, maybe 15-20% जो लोग भी हैं. So all they were taken few hundred years ago. They were made slaves there because they were forced to work. Okay, so that is how the entire thing. India से भी laborers लेके गए हमने across different. So we can see the Indians are living across the world. One kind of Indians which maybe went maybe few decades ago, but there were some Indians which may live 100 years, 150 years पहले गए. So all those were British colonies, and those were taken from India so that we can work there. So that is how the entire thing was shaping up. इस पूरे पीरियड में हम ये देख रहे हैं that countries moved. I'm not talking about developed nations. They moved from agrarian based economy to industrial based economy. तो ये सारा जो है देखने को मिला. ठीक है. Then 1950 से लेके ये 1940 से लेके अभी तक का जो पीरियड है, now we have moved to a new kind of economy called service based economy. So we'll try to understand. This chapter talks about that, and then we'll compare this development which has happened in the developed nation with India. कि इंडिया में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कैसा हुआ. So we can see here all these the 5 sectors we already discussed. Now coming to India. Now India की बात करते हैं. So again 3 sectors are there. So service, industry, and agriculture. Now what has happened?
आफ्टर 1852 सॉरी 1952 to 2000 या 21st सेंचुरी हम बोल लेते हैं, इस पीरियड में नई चीज देखने को मिली, दैट वाज 20th century, after mid of 20th century, we witnessed new things, that is the growth of service based economy. अब एक सवाल उठता है कि अभी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, तो वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ग्रोथ क्यों हुआ? इट वाज वेरी नेचुरल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपकी इनकम थी, लेट्स से यू आर अ फार्मर एंड योर इनकम वाज लेट्स से 1000 रुपीज अर्लियर. आपने मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज किया, योर इनकम इंक्रीज टू 5000 रुपीज. दिस 1000 में भी आपकी लाइफ चल रही थी, योर नाउ यू हैड अ सरप्लस ऑफ 4000 रुपीज. इस सरप्लस ऑफ 4000 से आप कुछ करोगे, ट्रेडिंग करोगे, बिजनेस करोगे, घर बनाओगे, कुछ भी करोगे, देन यू विल सेंड, देन यू स्टार्ट, मे बी देन ये 5000 से मे बी 50,000 पहुंच गया, एंड बेयरली मे बी 5000, मे बी 1000 का जो आपका एक्सपेंस है वो 2000 हो गया. नाउ यू हैव ह्यूज सरप्लस. व्हाट डू यू डू विद सरप्लस? आपकी जब पास सरप्लस आता है तो आप यूज करते हो उसको किस एरियाज में? देन यू डिफाइंड योर एरियाज लाइक ये नेसेसिटी है मेरी लाइफ का, ये कंफर्ट है, ये आपका लग्जरी है. So all the item, once your income start increasing, all the basic thing which were necessity, that जो लग्जरी था वो भी नेसेसिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल 20 years 2-3 decades ago आपको एसी कहीं मिलता नहीं था. आई रिमेम्बर इन 1980s यू कुड बेयरली सॉ, मैंने पहली बार एयर कंडीशनर 1980 8 या 89 में देखा था, जब मेरे घर में पहली बार लगा. इट वाज, और वो क्या बात थी, एयर कंडीशनर ठंडा कर रहा है, इतनी अच्छी नींद आती थी. We could never hear. उससे पहले coolers were there, maybe water coolers were there. But अब you can say there is omnipresence of air conditioners. आपको गांव में भी जो है कंडीशनर हर दूसरे घर में मिल जाएगा. And the reason why this is happening, because उस वक्त की जो लग्जरी थी वो आज नेसेसिटी हो गई है. Now the point I want to make here is that once your average income increases, then you start spending that average income in the areas you need are important. Now here all those people, अब आपका आपकी बेसिक नीड्स क्या है? आपकी फूड नीड्स है, मीट हो गई, आपको मशीनरी सामान चाहिए हो गया. देन व्हाट यू, आपको नेक्स्ट लेवल पे यू नीड थिंग्स, यू वांट टू सेंड योर चिल्ड्रन टू गुड स्कूल्स. तो स्कूल्स आप दोगे, मे बी कॉलेज जाएंगे बच्चे, सो कॉलेज एजुकेशन ग्रोथ होगा, ये सर्विस इंडस्ट्री है. देन यू फील दैट यू नीड टू यूज बैंकिंग सर्विसेज, आप बैंक में सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे. देन यू नीड इंश्योरेंस ऑल्सो, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, दुनिया भर के इंश्योरेंस हो गए. इंडिया में तो फिर भी थोड़ा इट इज एट द बिगिनिंग लेवल. वहां पे तो इफ यू कैन आर्टिस्ट अपने आप हाथ का इंश्योरेंस करा रहे हो, $50 million का आपके हाथ का इंश्योरेंस है. व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू योर हैंड, सो यू गेट 50,000 $50 million. सो इंश्योरेंस सर्विसेज ग्रू. देन एट द सेम टाइम सरप्लस हुआ तो आपको लगा चलो घूमना चाहिए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रू. You are eating outside, the restaurant industry grew. So this is because the average income of people start increasing. Now remember, जब ये average income बढ़ रही है तो यहाँ पे there's a demand for the services, and that is how we saw that when the surplus in the economy increased, when the average income increase of the population, they started demanding new services, and there was a growth and advent of new services. And specialized services पे जा रहे हैं. पहले आप डॉक्टर के आते थे, सिर्फ डॉक्टर है, फिजिशियन है. Now we have doctors, physicians, then we have surgeons, then we have body के different parts को treat करने के different doctors है. There are 100 specialities in the medical field because you are specialized. Now आपको specialized service चाहिए, तो education service हो गया, medical service हो गया, ये सारा service sector है. Now we are needing all these services. So the contribution of service-based economy surpassed during this period. 20th century में जो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. अच्छा, एक और चीज यहाँ देखने को मिली. एट कंट्री लेवल देयर वाज एन एडवेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट. हमारे नेशनल लेवल पे देखो क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट वी शुड इंश्योर दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज अ चिल्ड्रन ऑफ द रिपब्लिक. वो हर वो कंट्री का सिटीजन है, वो चिल्ड्रन ऑफ द रिपब्लिक, एंड हेंस वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट चिल्ड्रन. आज क्या हो रहा है, देयर आर पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. कहीं लिबरल्स फंसे हुए हैं, कहीं पे जो है कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तो गवर्नमेंट इज सेंडिंग बसेस टू टेक देम. उसका पैसा थोड़ी ले रहे हैं वो. दे आर इंश्योरिंग कि माइग्रेंट लेबर कैन कम थ्रू बसेस. दे आर प्रोवाइडिंग फूड. सो देयर इज अ एडवेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट. और इस वेलफेयर स्टेट की डिमांड को मीट करने के लिए you need lot of people, you need jobs, and those are called government jobs. So India में 2-3% population या 2% population are just ensuring कि हमारा welfare state चले.
So that these welfare state में majority of people who are occupied or who have occupation, they are in the service sector. Then law and order maintain करना है तो पुलिस चाहिए आपको. So police start increasing. The police was all there. Then you have police, फिर fire आएगा उसका. Then you will have you have people in the areas of maybe defense, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल डिफेंस को सिक्योर करना पड़ेगा, बॉर्डर सिक्योर करने होंगे. इसमें भी 3-4 लेवल पे काम है. अब तो 4-5 लेवल पे हो गया. देन यू हैव स्पेस सिक्योरिटी, वी हैव साइबर सिक्योरिटी, वी हैव. सो देयर इज अ ह्यूज एरिया ऑफ न्यू सर्विस सेक्टर ग्रू. तो सर्विस सेक्टर सडनली बिकेम ऑमनी प्रेजेंट. अभी आप देखो, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा है. बट एवरी टाइम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर विल ग्रो, ऑटोमेटिकली देयर आर सर्टेन सर्विसेज व्हिच आर एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, वो भी अपने आप ग्रो करेंगे. जितना एवरेज इनकम बढ़ेगा उतना आपका सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा. फॉर एग्जांपल मैं यूएसए की बात करता हूँ. यूएसए का जीडीपी जो भी है उसमें एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है लेस देन 1%, अराउंड 1% कंट्रीब्यूशन. दिस इज एग्रीकल्चर. ओके. इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन है मे बी 19% और मे बी 20%. दिस इज इंडस्ट्री. एंड 79% कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज का. यानी अगर यूएस की 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन, so we can say only 1% of 20 trillion is agriculture. इनका agriculture से 1% है. And 20% is industry. यानी 79% are the service sector. होता क्या है कि even in the industrial activity, there are a lot of activities which are categorized as services. आप प्रोडक्शन कर रहे हो, फैक्ट्री में भी बहुत सारा सर्विस आप यूज कर रहे हो. ठीक है. आप फैक्ट्री सिर्फ बना नहीं रहे हो, फैक्ट्री से सामान आप बेच रहे हो, तो यू आर यूजिंग सर्विसेज. Every company is a manufacturing company, but they have a sales team, they have a marketing team, they have this team, they have that team. So that will come under the category of services. So the point I want to make here is that 20th century में हमारा service sector grow होने लगा, and all the countries which were so-called industrialized nations in 18th and 19th century, they all became service-based economy. तो ये जो था, इसको हम लोग पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं. पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप होने स्टार्ट हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अच्छा, एक और बात थी. मॉडर्न वर्ल्ड इज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, वी आर लिविंग इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड. अगेन द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज कर दिया. अभी फोर्थ रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने फोर्थ लेवल पे हमने कहा ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ आईटी या फिर इंटरनेट का आना. ना इंटरनेट इज ऑमनी प्रेजेंस. वी आर सिटिंग हियर, वी आर टॉकिंग, एंड दिस इज ऑमनी प्रेजेंट. अभी हर जगह हो गया. एंड अ टाइम विल कम दैट we are in this age or stage where suddenly there will be a growth of us, वर्चुअल स्पेस ग्रो करेगा. जो आप मूवीज में देखते हो वो सब होने वाला है. आई डोंट नो कि टाइम मशीन होगा या आप स्पेस ट्रैवल कर पाओगे नहीं कर पाओगे. आई डोंट नो दैट थिंग, बट डेफिनेटली देयर इज वन थिंग. टुमारो दिस, ये जो रेवोल्यूशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है. ऑटोमेशन आने वाला है, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक, क्या कहते हैं, ड्राइवरलेस कार आने वाले हैं, एंड व्हाट नॉट, स्मार्ट होम, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड न्यू थिंग्स आर कमिंग. टुमारो यू विल हैव वर्चुअल पीपल. तो हाई स्पीड 5G आने वाला है, तो 5G विल बी वर्चुअल वर्ल्ड हो जाएगा. यानी इतना स्पीड जा रहा है कि वर्चुअली आप सर्विस दे सकते हो. सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैव ग्रोन. तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू सर्विसेज. इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस इज मोर फ्रॉम सर्विसेज एंड लेस फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. आउटपुट है वैल्यू का, वो कहीं जा रहा है. द रेंज ऑफ सर्विसेज दैट वी सी इन द इकोनॉमी इज वे टू हाई इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे. तो इंडिया में अगर बात करते हैं, सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट which accounts for nearly 55% of India's GDP. So theoretically, in the definition of the developed nation, we are a service-driven economy. Industry sector is around 29.73 and agriculture is around 16%. तो ये हमारा जो है contribution है. But there's one more difference. अगर हम ये मैं जो आपको जो बता रहा हूँ, this sectoral contribution, right? कि किस सेक्टर ऑफ जीडीपी, किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी से कौन सा कितना कितना आउटपुट हो रहा है. एंड सेम यही नंबर इज ऑलमोस्ट ट्रू अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. ठीक है. यानी वहां पर 1% पीपल इन एग्रीकल्चर ही में एम्प्लॉयड है. इन यूएसए ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. दे हैव अराउंड मोर देन 75 to 80% पीपल आर एम्प्लॉयड इन सर्विसेज. यानी जो उनका सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है, द सेम ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर आप उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी देखोगे. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में सर्विस सेक्टर इज 54.40%, but the people who are employed in the service sector are 29% of India's population. Agriculture is 15% in terms of GDP, but
around 53% people of are employed in agriculture. Industry is 29%, but 18% of people are employed in industry. कहने का मतलब ये है कि when we compare the in agriculture output and the employment, उनमें जो है वेरिएशन, काफी वेरिएशन है. The GDP contribution में various sectors are different and employment contribution in various sectors are also different. They do not conform to what is happening in the developed nations. अब यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं. सो ये जीडीपी का डेटा है. यू कैन सी जीडीपी को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट एज ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है. व्हेन आई टीच नेशनल इनकम तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा. तो ये इंडिया का जीवीए है एट बेसिक प्राइस, कुछ इतना है हमारा. ठीक है. इट इज एट कांस्टेंट प्राइस. ठीक है. कांस्टेंट प्राइस में आपको दो मिलेगा. जब आप जीडीपी पढ़ोगे, जीडीपी आपको एक मिलेगा कांस्टेंट एंड जीडीपी आपको मिलेगा नॉमिनल. नॉमिनल मतलब मार्केट प्राइस पे होगा, कांस्टेंट मतलब कुछ बेस प्राइस पे होगा. तो ये जो जीडीपी आपको नजर आ रहा है 1 जो भी है, दिस इज बेस्ड ऑन 2011-12 प्राइसेस. ठीक है. करंट प्राइस मतलब मे बी 2020 की बात कर रहे हैं तो वो कुछ इतना है. ये हमारा लैक्स ऑफ करोड़ में है. ठीक है ना. ठीक है. अराउंड 2 लाख अभी का बात करें, इतना है हमारा. अराउंड 2 लाख करोड़ इज द, सॉरी, अराउंड नॉट 2 लाख करोड़. इंडिया जीडीपी इज अराउंड 190 लाख करोड़. ये इंडिया का जीडीपी है टोटल, अगर अभी की बात करते हैं. ठीक है ना. ये नंबर 2 साल पहले का, 1 डेढ़ साल पहले का. सो दैट इज हाउ वी कैन से वो करंट प्राइस पे हो गया. सो वी कैन से दैट तो जीडीपी अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो अब यहाँ देखो, कंट्रीब्यूशन देखो ना यहाँ पे. एग्रीकल्चर का ये नंबर है कुछ. ठीक है. देन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को हमने डिवाइड कर रखा है. ओके. सो इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस हमने और भी कंपोनेंट में हमने सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया है. Okay. Now production activities will produce number of goods and services. But जब goods and service produce कर रहे हो तो we always take as final goods and services. And जब final goods and service हम लेते हैं तो हम लोग फिर कहते हैं जीडीपी. तो जीडीपी को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या करना है? वैल्यू. अगर in a very simple layman term, if you have to understand GDP, you can understand like this कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर whatever economic activity is going on, उसका वैल्यू आप ले लो टोटल इन 1 year, that is the GDP of the country. So GDP is the total market value of all the goods and services in 1 year within India's boundary. But इसमें जो हम आइटम्स लेंगे, हम लोग फाइनल आइटम्स लेंगे. ओके. यानी जो भी फाइनल प्रोड्यूस हो रहा है, कोई अगर सामान, फॉर एग्जांपल व्हेन यू मेकिंग अ कार, सो कार का फाइनल प्राइस लोगे आप. बट कार का जो फाइनल प्राइस लोगे तो कार के बीच में टायर यूज हुआ होगा, वो आप उसको अलग से काउंट नहीं करोगे, बिकॉज दैट टायर हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूड इन द कार. सो दैट टायर विल बी एन इंटरमीडिएट आइटम. ठीक है. तो हम लोग सिर्फ फाइनल आइटम काउंट करेंगे एंड देन वी कैलकुलेट, then that will be the GDP. The GDP of the country could be the total market value of all the final goods and services produced in an economy in 1 year. So that is GDP. तो हमारा GDP 2.9 ट्रिलियन है. उसको रुपये में कन्वर्ट करें तो अराउंड 190 लाख करोड़ के अराउंड जो है वो है. Now, as we mentioned, ये हिस्टोरिकली जो मैंने पूरी कहानी सुनाई थी वो इस तरह से था. फर्स्ट देयर वाज अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देयर वाज अ टर्शियरी सेक्टर. तो ये डेवलप्ड कंट्रीज का ये एक यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ था. All the countries they moved from primary to secondary. This was in primary to secondary. This was in 18th and 19th century. Okay. And from 20th and 20th, तो ये 20th century में आप देख लो ये हुआ, या 21st century अभी कह लेते हैं. So this was all the countries which are agrarian based economy, they moved to industrial based economy, and from industrial based economy to service based economy. तो कुछ इस तरह से हुआ. ट्रांजिशन सोसाइटी हुआ, फिर industrialization हुआ, and then finally today we are living in the high mass consumption society. You can read this. Okay, so we can see a traditional society with almost no technology. Then technology started happening, market started developing, commercial agriculture kind of started. Then here there was a development. अभी जब हुआ तो commercial activity बढ़ने लगा. Then you start moving places, and that is how roads, railways. Again remember parallelly जो है हमारा industrial revolution भी हुआ.
Okay, and then the manufacturing sector got developed. It became its base. वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, and that is how the things have moved. Then they captured all the countries वो beyond the national boundaries से move करके they started moving to transnational boundaries, and there was a comparative international trade grow हुआ, and today सब कुछ interlinked है. Today we live in a global world. Okay, so the first growth, primary sector growth हुआ. Initial stage of development, the farming and agriculture flourished. तो फार्मिंग एग्रीकल्चर में यहाँ पे फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग आए. देन सेकंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हुआ, सेकंड सॉरी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, और यहाँ पे हमने फूड प्रोडक्शन बढ़ा. एंड दिस फूड प्रोडक्शन, द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन वाज बिकॉज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी. ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. पहले क्या था, जब कोई भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की होती थी तो आउटपुट आपका जो था वो कम था. देन यू यूज मॉडर्न मशीन्स हुआ, you learned about the science of agriculture, and that is how the production started increasing. जब प्रोडक्शन हुआ बढ़ा, the surplus came, the surplus happened. Now everybody was not here because कुछ लोग की मजबूरी थी, they moved from agriculture to industry, and that is how buying and selling started, trading started. But here also it was agrarian based economy. ठीक है, because more than 50% of GDP was from the agriculture. तो ये पहला है जो ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर है. दिस ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपेंड, मे बी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगा इनको ग्रोथ होने में. देन इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन केम and the technology came in, new methods of manufacturing आया, factory mode of production, mass production of goods, economies of scale model. economies of scale का मतलब जब आप कोई चीज, so when you're producing 10 items, the cost per item is let's say 10 rupees, but when you're producing 100 items, the cost per item will come down to 7 rupees or 6 rupees. Okay, so this is called economies of scale. When you're producing at mass scale, the cost of the item per unit will come down. Okay, and this led to total production increase along with employment. अब ये सारे लोग जो एक्स्ट्रा लेबर थे, now remember the technological development is happening across sectors. वो इंडस्ट्री में भी ग्रो हो रहा है, the growth is happening in medical science also, the growth is happening in every which way, which means जो masses थे, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, they all got absorbing, they all got absorbed into the industrial activity. और but एक प्रॉब्लम था यहाँ पे, the society was divided into two large group. One was the rich, other was the poor. जो rich थे, they were the owners of the factory, and the poor mostly were the laborers. ठीक है, एग्रीकल्चर में हो या तो ये लोग मशीनरी के लिए काम, एंड दैट इज वेयर ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का, the capitalist system also got developed. So this was also a period when the rich people made a huge amount of money, and the poor, they were in more in numbers, but they were exploited. So इसी situation के time, it was also believed that exploitation started. But remember, अभी तक मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं आई है. हियर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट थी वहां पे, गवर्नमेंट थी मॉडर्न, जो भी गवर्नमेंट आने लगी, ये जो गवर्नमेंट थी, दे वर सपोर्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम. बट एक और रेवोल्यूशन आया पैरेलली, दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ रेवोल्यूशन ऑफ आइडिया. आइडिया ऑफ व्हाट? आइडिया ऑफ फ्री. Man is born free. Man is, you need liberty, you need democracy. Okay, and this monarchy, they all turned from monarchy to modern democracies. Okay, so जब modern democracy आया तो ये जो poor लोग थे, they eventually, and again it not happened in one day, it happened over centuries or over decades. You'll be surprised to know कि इंग्लैंड में यूनिवर्सल वोटिंग राइट it came as late as 1930s. 1930s में जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट आया, वुमेन को वोटिंग नहीं था. पहले क्या था, उन्हीं इलीट्स का वोट, जो जिनकी इनकम कम थी वोट नहीं कर सकते थे, या जो पुअर थे वोट नहीं कर सकते थे. लेटर ऑन स्टार्ट इवॉल्विंग. सो जब व्हेन द मास, और यू कैन से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज केम, यानी एवरीबॉडी कैन वोट, तब क्या हुआ, सडनली दीज पुअर पीपल, इनको अपने वैल्यू ऑफ वोट समझ में आया, एंड देन दे कुड चूज गवर्नमेंट, and then they asked government ki bhai, try to resolve this, and then these people bargained, and that is how labor laws came. Factory model production में जो exploitation था, the exploitation came down. Modern labor laws में the wage, आप 5 days आप work कर रहे हो, 2 days off ले रहे हो. Work hours were, पहले work hours were 14 hours, 12 hours, now that came down to 8 hours. Then
Government said that we'll take care of everybody. Education got free, health got free, public education आया, public health आया. The concept of welfare state started increasing. अच्छा, उसमें एक और लैंडमार्क डेवलपमेंट्स भी हुए इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल इन 1929 देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन. ओके, सो इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड इकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया. So when this Great Depression came, the masses were unemployed, the factories were shut down, the that suddenly the demand of the world economy came down, and that is where it was believed कि अब क्या किया जाए, because the capitalist system था, it was based on the private people who are controlling everything, and government was more of a regulator. ठीक है, आप चलाओ, हम लोग रूल बना देंगे. But here Great Depression changed everything. Even the private were not able to produce. उनका भी production capacity बढ़ गया, demand came down, unemployment went up, markets crashed, and that is where the concept of welfare state increased even further. तब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम और कंट्रोल करेंगे. So they started providing unemployment wages, या unemployment जो कह लीजिए कि benefit आपको मिलेगा, then education मिलेगा, health मिलेगा. तो वो सारी चीजें और universal level पहुंचना स्टार्ट हो गया, because the welfare state was supported by the modern democracy. And democracy में क्या हुआ, people will decide कि क्या होना चाहिए. So इंडिया में पुअर है वो डिसाइड करता है. हाउ कम people from lower income group people, या फिर कोई दलित जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जा रहा है किसी स्टेट का. व्हाई? बिकॉज द मासेस आर वोटिंग एंड मासेस आर पुअर. सो मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो डेवलप्ड नेशन में पहले डेवलपमेंट हुआ, डेमोक्रेसी बाद में आई, रिमेंबर. And when the democracy came, they changed or they forced the government to change the way the economy was working. And that is how ये जो capitalist system में जो exploitation था, that exploitation also came down. And apart from that, there was another ideological movement called socialist movement. ठीक है, तो सोशलिस्ट मूवमेंट वालों ने क्या किया, यूएसएसआर, मे बी चाइना, ईस्ट यूरोपियन नेशंस, ये कंट्रीज में क्या हुआ, गवर्नमेंट लेड सिस्टम आया, प्राइवेट सिस्टम जैसा डेवलप्ड नेशन में वैसा नहीं था. नाउ दे वर वेरी लुक्रेटिव. सो डेवलप्ड कंट्रीज व्हिच वाज सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज, दे फेल्ट कि सोशलिज्म हमारे यहाँ ना आ जाए, सो लेट्स फोकस ऑन वेलफेयर. सो ऑल द डिमांड ऑफ पुअर पीपल, लोअर इनकम ग्रुप पीपल, उनको हम मीट कर लेंगे, उनको हम लेबर लॉज में करेंगे, उनको अच्छा वेजेस देंगे, उनका हेल्थ टेक केयर करेंगे, विल इंश्योर द बेनिफिट इज गिवन, विल इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इज क्या वैल्यू ऑफ वोट भी हो, एंड दैट पर्सन इज हर्ड ऑल्सो. द पीपल वर एजुकेटेड, एंड दैट इज हाउ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिकेम स्ट्रेंथन्ड. डेमोक्रेसी में सबसे जो प्राइमरी रिक्विजिट होता है वो ये होता है दैट पीपल शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी इन सिचुएशन टू टेक अ डिसीजन, एंड दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी. जैसे मैं परसों पॉलिटी का लेक्चर हुआ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, 9th या 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे दैट हाउ मॉडर्न डेमोक्रेसी केम. क्या डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का प्रोसेस है? नो, इट इज मच बियॉन्ड दैट. क्या डेमोक्रेसी इज अबाउट common political consciousness, it is about citizenship consciousness, it is about understanding your role, your duty. So it is much beyond that. तो आप स्टेट के लिए स्टेट आपके लिए कर रहा है, तो आप भी स्टेट के लिए करोगे, एंड यू विल इंश्योर दैट यू एक्ट एज अ विजिलेंट सिटीजन. विजिलेंट सिटीजन हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो गवर्नमेंट को. तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस आया, एंड एक्सप्लॉयटेशन केम डाउन, इवन दो एक्सप्लॉयटेशन किसी न किसी फॉर्म में है. तो ये पैरेलली हो रहा है. देखो, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी भी डेवलप हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइडिया का रेवोल्यूशन भी आ रहा है. ओके, एंड बाय द टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज कंप्लीट, द ऑल द कंट्रीज दे मूव टुवर्ड्स मोर फ्रीडम बेस्ड सोसाइटी. ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. एंड देन ऑफ कोर्स इसके बाद क्या आया, सर्विस सेक्टर. पास्ट 100 years, evolution on the production process, most employment in service sector, production of goods to involved services. Okay, pattern observed in developed economies, and they were called service based economy, which means more than 50% of GDP is coming from service sector. Okay, so that is how the tertiary sector growth जो हुआ वो 20th and 21st century में देखने को मिला. Okay, बट इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में हमने क्या किया, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे स्विच मार दिया, सॉरी सर्विस पे स्विच मार दिया. Never ever in India's economy we saw a phase where industrial sector could reach 40% or 40 more than 40%. So we saw increase in the contribution of tertiary sector, and from agrarian based economy we moved to a service based economy. यानी हमने जो accepted जो approach था, हमने industrialization को skip कर दिया. Okay, so India did not skip the industrialization because of multiple reasons. तो आज हम देख रहे हैं the service sector contribution is way too higher. दो क्वेश्चन आ जाता है. द फर्स्ट इज व्हाई डिड सर्विसेज ग्रो इन इंडिया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट फ्यू डेकेड्स. एंड द सेकंड क्वेश्चन कम्स इन दैट हाउ कम द इंडस्ट्री डिड नॉट ग्रो टू द लेवल इट शुड हैव ग्रोन.
ठीक है, इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो किया? व्हाई डिड नॉट वी रेप्लिकेट द मॉडल ऑफ डेवलप्ड नेशन? फॉर एग्जांपल चाइना इज फॉलोइंग द सेम मॉडल, ऑल द डेवलप्ड नेशंस, वेस्ट यूरोपियन नेशंस हो गए, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, मे बी सिंगापुर हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑल द कंट्रीज हैव फॉलोड द सेम मॉडल. हाउ कम वी आर नॉट फॉलोइंग द सेम मॉडल? देयर वर मल्टीपल रीजन. पहली बात तो है कि इंडस्ट्री डिड ग्रो इन इंडिया, बट इट नेवर रीच टू द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस. Partly because growth of basic service बढ़ना start हुआ. The growth of welfare state when India became independent country happened, and government took the role of education, hospitals, administrative, defense, transport, bank, insurance. So this services बहुत तेजी से grow हुआ, and government जो भी GDP में आया, government ने सारा पैसा इधर लगाया. Development of service due to development of agriculture and industry. Now agriculture also grew and industry also grew. Now 1951 में for the first plan of India was devised. है ना? तो 1951 से लेके हमने प्लानिंग कमीशन डिवॉल्व किया, 5 ईयर प्लान्स वर मेड, एंड दीज 5 ईयर प्लान्स क्या फोकस था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इनफैक्ट जो पहले कुछ प्लान का फोकस था, इट वाज टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन. सेकंड प्लान ऑनवर्ड्स हमारा जो पूरा फोकस था, इट वाज अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री. दैट वाज अ प्राइमरी रिक्विजिट, बिकॉज वी वांटेड टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन द डेवलप्ड कंट्री. जो भी डेवलप कंट्री में हुआ है, वो मॉडल हमको इंडिया में रेप्लिकेट करना है, एंड द ओनली वे फॉरवर्ड वाज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, and secondly development of industry which will employ the masses, especially in India जहां population बहुत ज्यादा थी. तो हमारा फोकस भी उसी तरह था, बट कहीं बीच में गाड़ी डिस्टर्ब हो गई, कहीं तो वो नहीं हो पाया. ऑल्सो द डेवलप्ड कंट्रीज में पूरा प्रोसेस मे बी डेकेड्स, सेंचुरीज में हुआ. इट टुक ऑलमोस्ट 2 centuries, 2.5 centuries. बट हियर इंडिया में वो we could not wait for such long period, and hence हमारे यहाँ एक चैलेंज ये था that we had to replicate USA's model or developed countries model, maybe in decades. So that was another challenge. तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो किया, बट इट वाज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाज नॉट कमेंसरेट विद मे बी द अदर सेक्टर. तो यहाँ पे सर्विसेज का ग्रो हुआ. जब भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो होगा तो सर्विस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा. अब इस पूरे प्रोसेस में एवरेज इनकम ऑफ पीपल स्टार्ट इंक्रीजिंग. गवर्नमेंट जॉब्स में जो है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में है, जिनकी एवरेज इनकम बढ़ने लगी, दे स्टार्टेड डिमांडिंग न्यू सर्विसेज, टूरिज्म, शॉपिंग. अभी आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, अभी तक 20,000 थी. अभी आप पढ़ रहे थे, आपको घर से पॉकेट मनी मिलता था. यू डिड आपने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया और आपको डे 1 में आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई. कट कट आके मान लो मे बी 70,000 हो गया, एंड सडनली यू गो बर्जर्क. अरे क्या हो रहा है, अभी तक तो कमाया नहीं था. यू डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स, एंड सडनली आपका इनकम बढ़ गया. एंड देन यू स्टार्ट, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप टूरिज्म में जा रहे हो, आप घूम रहे हो, यू आर टेकिंग आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो, आप डांस सीख रहे हो, आप गाना सीख रहे हो, आप जिम जा रहे हो. ग्रोथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग. पहली योर पेरेंट्स आर आल्सो वर्किंग, मे बी अर्निंग, तो मे बी दे आर टेकिंग, आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं. there's a demand for new private hospitals, super specialized services, extra services हो रहा है. There's a growth of altogether new activities that has grown. So ये सारा automatically जो है 50s, 60s या 70s में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, एंड 80s में एक और चेंज स्टार्ट हुआ which kind of took off in 90s was growth of IT and IT enabled services. इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, बिकॉज इन 1991 वी रिफॉर्म द इकोनॉमी. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जैसे ही हमने इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, द आईटी सेक्टर started growing. Why? Because India had huge young population. At the same time, India had English educated population. हमारे यहाँ IITs and NITs and RECs and engineering colleges, and then demand बढ़ने लगा तो private colleges भी बढ़ना start हुए. So those led to situation of creation of lot of intellectual labor. And ये जो intellectual labor थे, इनको English आती थी. Okay, so they had skill also, they have soft skill, they hard skill, and they had to. So USA में ग्रोथ हुआ, यूरोप में ग्रोथ हुआ. इंडिया प्रोवाइडेड all this English speaking population. So the growth of IT and IT enabled services was also because India का जो मैन पावर था, उसमें जो एक अपवर्डली मोबाइल पॉपुलेशन था, स्पेशली मिडिल क्लास. So your father is a government job, but you did engineering from a good college and you go for a private job. You don't go for government job. 1990s में गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज बहुत कम थी, एंड प्राइवेट जॉब में सैलरी बहुत अच्छी थी. I remember in my own, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, barring 1 or 2 people, everybody is in the private job. Okay, why? Because private job में आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, you are from a good college, you have make an effort, you go reach at good level. Of course, in that also there are people who are looking for prestige, honor, respect. वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं. The point I want to make here is that आज गवर्नमेंट जॉब भी lucrative है. इनफैक्ट इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ, इस कोविड क्राइसिस में अगर कोई जॉब स्टेबल है तो वो गवर्नमेंट जॉब है और कोई नहीं है.
ओके, बिकॉज गवर्नमेंट, वो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अपनी सैलरी कम कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं कम करेंगे। करेंगे भी तो बाद में वो दे देंगे, ठीक है। द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट दैट एक तो गवर्नमेंट जॉब की ग्रोथ हुई, तो गवर्नमेंट जॉब में सारा सर्विसेज ग्रोथ हुआ, एंड ऑफ कोर्स द प्राइवेट सेक्टर ग्रू मेनली इन द सेक्टर एरिया ऑफ सर्विस सेक्टर। ओके, सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया employed highly skilled and educated people, intellectual labor at one end, एक तो ये था, बट रिमेंबर इसके अलावा भी सर्विस सेक्टर था। लार्ज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एज वर्कर्स, शॉपकीपर्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन। अभी आप ये आपको झाड़ू लगा रहा है तो वो भी तो सर्विस सेक्टर में है ना, वो एग्रीकल्चर में है ना इंडस्ट्री में है। ओके, कोई ट्रेडिंग कर रहा है छोटा मोटा तो वो भी तो सर्विस सेक्टर में है, कोई शॉपकीपर है तो वो भी तो सर्विस सेक्टर में है। ओके, सो दीज आर ऑल्सो ह्यूज, सो ऑटोमेटिकली दीज पीपल आर इन सर्विस सेक्टर एंड हेंस दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो एक तो वो था जो इंटेलेक्चुअल लेबर था, एजुकेटेड कैटेगरी का था, एंड देन दीज वर अदर पीपल। सो दैट इज हाउ इट लेड टू अ सिचुएशन। Okay, so let's see the employment trends. Shift in employment in last 4 decades indicate not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. अभी हम अगर हम 4 decades का देखते हैं, फ्रॉम 1970 से लेके 2010 तक का, तो व्हाट डू वी सी दैट service sector and industrial sector grew, but jobs were not generated. Industrial output went up by 9 times, but employment went up by 3 times. पहला why ऐसा क्यों हुआ? Because जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, the industrialization in India was entirely capital intensive. कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन ड्रिवन था, जॉब्स वाला नहीं था। यू आर मेकिंग स्टील प्लांट, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ ह्यूज पेट्रोकेमिकल प्लांट। अब वो पेट्रोकेमिकल प्लांट वो मशीनरी सारा काम कर रही है, ये लेबर जो है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ना के बराबर है। ओके, सो इन इंडिया ऑल द मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, हैवी मशीनरीज, ये सारे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। सो दे आउटपुट वेंट अप बिकॉज फैक्ट्री मास से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट रिमेंबर दे आर नॉट एम्प्लॉइंग लेबर इन नंबर्स, लेबर्स को बहुत नंबर्स में एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं। सो एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट ग्रो अप टू द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता तो शायद हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ही नहीं होता कभी। ओके, सर्विस सेक्टर ग्रू बाय 14 टाइम्स एंड द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ग्रू बाय 5 टाइम्स। अभी आप एक बैंक में, आप मान लो आप बैंक में जॉब कर रहे हो, तो अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो तो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का टर्नओवर है 10 सीआर। ओके, सो डूइंग 10 सीआर बिजनेस, और ये 10 सीआर बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर एम्प्लॉइंग 100 पीपल और मे बी 200 पीपल। तो आपसे 200 लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री, और ये 10 करोड़ का टर्नओवर है एंड 200 पीपल आर एम्प्लॉयड। देन देयर इज अ एक कोई स्टॉक स्टॉक कंपनी बनाई, एक उसने बनाई, एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई। ओके, एंड देयर ओनली 5 पीपल इन्वॉल्व एंड दे आर आल्सो डूइंग बिजनेस ऑफ मे बी 10 करोड़। कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ? 5 लोगों का। ये ना, यहाँ भी इन्होंने बिजनेस 10 करोड़ का किया, बट दे आर जस्ट एम्प्लॉइंग 5 पीपल। नाउ ट्राई टू सी हियर, इट इज अ सर्विस सेक्टर ड्रिवन अप्रोच। आपने बैंक खोला एंड बैंक से भी आप मे बी आप 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एज इक्वल टू मे बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया कभी ग्रो नहीं किया। ऐसा नहीं कि it it is not there, it is definitely there, but we could not grow to the level of developed nations. आज हम, आप देखो ना, जो अभी टेस्टिंग चल रही है कोविड की, इंडिया की कैपेसिटी इतनी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास लैब्स नहीं है, बट वी वर मोस्टली डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। क्या है, चाइना से इजी हो रहा है तो इंपोर्ट करते ना, घर में क्यों बनाए। सडनली द क्राइसिस इज देयर बिकॉज उनके पास भी नहीं है, एंड दे आर अपॉर्चुनिस्टिक टुडे एंड दे से अच्छा 10 रुपए का सामान 20 रुपए में देंगे, बिकॉज दे कुड सी अपॉर्चुनिटी वेयर दे कुड ऑन, एंड दे नो दैट अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी डिमांड है। सो इंडिया को कहा ठीक है अभी आप थोड़ा दे दो, एंड एट द सेम टाइम वी आर वर्किंग ऑन अ कैपेसिटी टुडे। जस्ट आई रेड इन न्यूज़पेपर दैट 1 लाख हम लोग पर्सनल प्राइवेट जो ये जो इक्विपमेंट है, ठीक है, जो आपका इक्विपमेंट है, जो हेल्थ इक्विपमेंट लगाते हैं जो कोविड वाले में, 1 लाख हमारा सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 1 लाख ही है, आउट ऑफ सो मच एफर्ट। और ये पिछले 1 महीने का एफर्ट है, रिमेंबर दिस इज एफर्ट ऑफ पास। उससे पहले हम नंबर्स बहुत कम प्रोड्यूस करते थे, देवर फैक्ट्रीज, बिकॉज दिस रिक्वायर्ड ऑल टुगेदर न्यू, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मटेरियल बनाना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न हाउ दीज आर थिंग्स आर मेड, एंड रिमेंबर इज अ क्राइसिस। तो क्राइसिस में आप बहुत जल्दी जल्दी लर्न करते हो, बिकॉज इट्स अ जीवन जीने मरने का सवाल है। दैट यूएसए या फिर अमेरिका या फिर वो चाइना, वो कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पहले वो अपना डिमांड मीट करेंगे, उनकी कंट्री में ही क्राइसिस आ रखा है। सो सो दैट इज अ रीजन दैट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं किया है। अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर इंडस्ट्री की,
मैं लैपटॉप जो यूज कर रहा हूँ, आई एम श्योर इस ये एक डेल का लैपटॉप है, आई एम श्योर इट इज ऑलमोस्ट हर चीज कैसे बनेगा, सारा कोडिंग या इसका जो मेथोलॉजी है वो सारा शायद यूएस में हुआ होगा, बट एक एक हार्डवेयर इसका चाइना में बना हुआ है। मेरा डिजिटल पेन चाइनीज है, मेरा मोबाइल फोन वन प्लस है, ये चाइनीज है। द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट कि हार्डवेयर पूरा चाइना में बन रहा है, सॉफ्टवेयर यूएस में बन रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं। ओके, सो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है दैट डिड नॉट ग्रो। ओके, 50% people are employed in agriculture and they just generate 15-16% of India's output, which means जो tertiary and secondary sector है, which total account 85% of India's GDP, they employ मतलब 84 out, they employ less than half of the population. तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, एंड दैट इज वाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा डिफरेंस है। एग्रीकल्चर में कोई 1 रुपए कमा रहा है, तो सेम एफर्ट पे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 6 रुपए कमा रहा है। सो दैट इज द लेवल ऑफ आउटपुट डिफरेंस। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया इकोनॉमी, इसको हमें सही करना है। यूएस में अगर एग्रीकल्चर में हो या सर्विस में हो, दोनों का लगभग बराबर है प्रोडक्टिविटी, बिकॉज अगर वहां 1% जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 1% एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इंडिया हैज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप एम्प्लॉयड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यू से दैट 8 आवर्स मेरा वर्किंग आवर्स होना चाहिए, बट यू हैव ओनली 5 आवर्स ऑफ वर्क। आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, आपको 5 घंटा ही काम है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक फील्ड है यहाँ पे 10 लोगों की जरूरत है, बट फैमिली में 15 लोग हैं। सो ये 5 लोगों को अगर हटा भी दें तो प्रोडक्टिविटी विल नॉट बी इम्पैक्टेड। सो दैट इज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में एक लेबर क्लास में एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। If you move maybe millions of labor from agriculture, even then the output of agriculture will not change. But you have to create jobs in industry and service sector equivalently so that these people can be absorbed. Okay. Then there are unemployment other sectors like urban areas, casual workers, पेंटर्स, रिपेयर जॉब्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप 8 घंटे काम कर सकते हो बट आप 5 घंटे ही काम कर रहे हो। जैसे मान लो अभी है, जब पेंटर्स है, पेंटर्स की जरूरत कब होती है, जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में पेंट उग जाता है, पेंट नॉट हैपनिंग, सो दिस पीपल विल बी, इनको काम ही नहीं होगा। when the summer starts, suddenly there's a demand for people who are making air conditioners, लेकिन वही 2 में 3 में ठंड में उनकी डिमांड नहीं होती है, so these people could be unemployed. Okay, so they are doing odd jobs. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो है आपकी सैलरी अप्रैल में कुछ और होती है, मई में कुछ और होती है, जून में कुछ और होती है? ऐसा नहीं है, बट दीज पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन दीज सेक्टर्स दे हैव अ प्रॉब्लम। सो वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस वेयर एवरेज इनकम जो है इनकी इतना वेरिएशन में देखने को ना मिले। So unemployment is there in other sectors as well, and in general agriculture is underemployed and disguised unemployment का problem है। अब यहाँ देखो आप, ये 1973-74 का है, 2013-14 का है। So agriculture industry, अब यहाँ देखो agriculture industry and services तीनों ग्रो किया है, but service has grown manifold. Okay, and see the unemployment. Okay, 74% से agriculture में 50% हो गया है, 24%, 27%. Okay, so shares of unemployment and shares of the people of these in the, अब ये जो 49% है, they are contributing 15% of India's GDP. ये 27% are contributing maybe 55% of India's GDP. Okay, so that is how the things are. So we have to improve this, और ये तभी होगा when you have to create more employment. Employment आपको generate करना होगा, and you have to generate employment which are productive, employment जहाँ पे remuneration अच्छा हो, where average needs are met, where productivity in the employment is high. हमारे यहाँ हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। सो आप क्या करिए, इन्वेस्ट करिए एग्रीकल्चर में। जब एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल व्हेन यू फोकस ऑन इरिगेशन, सो आई एम अ फार्मर, मेरे पास 5 हेक्टेयर का लैंड है बट इज अनइरिगेटेड, बट मोमेंट आई इरिगेट अ लैंड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 मंथ्स आई कैन यूज 12 मंथ्स, यानी मेरी प्रोडक्टिविटी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, मेरी इनकम 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, आई कैन एम्प्लॉय 3 टाइम्स मोर लेबर। ओके, इंफ्रा डेवलपमेंट, जब इंफ्रा डेवलप होगा, लेट्स इमेजिन कि मेरे माय विलेज इज कनेक्टेड टू द मार्केट, जो भी मेरा सरप्लस होगा आई कैन सेल इट टू द मार्केट। ओके, इन अर्बन एरियाज या एक डेवलप्ड सिटी का और अंडरडेवलप्ड सिटी का क्या डिफरेंस होता है? दिस इंफ्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव गुड रोड, यू हैव सीवरेज सिस्टम, यू हैव कनेक्टिविटी, द कंजेशन इज नॉट हैपनिंग, यू हैव मेट्रो सिस्टम। सो इंफ्रा डेवलपमेंट इज की टू डेवलपमेंट। अगर इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल इंश्योर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इंफ्रा डेवलपमेंट 2 लेवल पे एम्प्लॉयमेंट होता है। वन इज व्हेन द इंफ्रा इज बीइंग डेवलप्ड एट फर्स्ट प्लेस, सेकंड इज वंस द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी इन प्लेस, इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला तो है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जैसे अभी आप पहले 4 महीने में आपको देखो क्या होने वाला है। गवर्नमेंट की नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, दोनों की जॉबलेसनेस बढ़ने वाली है।
टुडे व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो लॉट ऑफ चीफ मिनिस्टर सेड सर मनरेगा को आप 100 डेज से 150 डेज कर दीजिए, so that people staying in their villages will have more मनरेगा days and hence they will ensure कि उनकी इनकम रहेगी. So now these people will have income, especially because मनरेगा is about unskilled workers. तो ये जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं मनरेगा वाले, जब ये काम करेंगे तो इनको जब सैलरी मिलेगा तो दे विल क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी. उनका जो वेज होगा उससे डिमांड जनरेट करेंगे. और डिमांड किसका होगा? सबका डिमांड होगा. एग्रीकल्चर आइटम का डिमांड होगा, सर्विस आइटम का डिमांड होगा, मे बी स्कूल में बच्चे जाएंगे उनके, मे बी इंडस्ट्रियल आउटपुट का डिमांड होगा. ठीक है. सो दैट इज हाउ इंफ्रा डेवलपमेंट. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वन दिस कोविड क्राइसिस, अभी क्या गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेनी स्टेट्स, यूपी में और बहुत सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि स्टार्ट करो एंड डू इट एट अ गुड पेस. मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड डू इट एट अ गुड पेस. जब आप गुड पेस से करोगे तो दैट विल जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वो इंफ्रा डेवलपमेंट में जो पैसा लगेगा इट विल क्रिएट डिमांड फॉर मे बी स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिमांड फॉर टेक्नीशियंस, डिमांड फॉर heavy machineries, and that will spur the demand in that sectors. तो उन सेक्टर का ग्रोथ तो होगा, साथ साथ people who are employed on ground in developing that will also get developed. And parallelly, after 2 years down the line, when India's infrastructure is good, all the developed countries or the countries who want to shift their production from China to India might look India as a lucrative option. Abhi just Chief Minister of UP yesterday said he try to look ways in which we can attract investment from developed countries, because suddenly he is looking at as opportunity, because people, many countries feel that you can't trust us country X, maybe China, because of whatever they have done. At the same time, provide formal and institutional credit facilities. रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को में जो है इनपुट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो रिड्यूस, इंश्योर दैट किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिलने लगे, फार्मर को लोन मिले, एंड दैट विल रिड्यूस द प्रॉब्लम इंडेटेडनेस. इंस्टेड ऑफ मे बी 30% को लोन मिल रहा है जो एक मनी लेंडर और ट्रेडर ले रहा है, यू माइट गेट एट मे बी 6% और 4% और 7%. सो दैट विल रिड्यूस फॉर्मल. आपको बिजनेस करना है, मुद्रा लोन मिल जाएगा छोटा मोटा. डेवलपमेंट ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू गेट टू अर्बन मार्केट्स. अभी एक पीपल माइग्रेंट लेबर फ्रॉम मध्य प्रदेश, सॉरी फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम पंजाब, वो सारे यूपी बिहार के हैं. They are moving to these areas because there are no local industries. Can we create opportunity? Can't we create opportunity in small states? हमको वैसा मॉडल सोचना पड़ेगा. Why somebody has to move from बिहार to गुजरात? Because उसको पता है कि बिहार में नौकरी नहीं है, तो गुजरात में चलो वहां नौकरी मिलेगा. But when he moves to गुजरात, उसकी जो इनकम एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, because migration तभी आप करोगे when you will analyze. Nobody wants to leave their home. Once you get a good opportunity, then only you leave your home. और आपकी बेसिक नीड से कहीं ऊपर मेट होगा तब आप वहां जाओगे. व्हाट इफ अभी आप एक गुजरात में एक लेबर जा रहा है एंड उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है 20,000, कह रहा है आई विल गो टू गुजरात ओनली इफ आई गेट 20,000. एंड इफ आई आस्क हिम व्हाट इफ आई गिव यू अ जॉब इन बिहार ओनली, आपको सैलरी मिलेगा 12,000, तो इसे दिस इज बेटर बिकॉज आई एम स्टेइंग एट माई होम, और घर पे कोई खर्चा नहीं है. बिकॉज जब गुजरात में जाऊंगा तो मे बी 5,000 रेंट दूंगा, 5 to 6,000 मेरे पर्सनल एक्सपेंस होंगे, मे बी 1,000 मोबाइल होगा, मे बी, एंड देन सेविंग इज 5,000. एंड यहाँ वो कहेगा मेरा पर्सनल खर्चा तो कुछ भी नहीं है, घर है, रेंट देना नहीं है, सो मे बी सेविंग विल बी अगेन 7,000. सो आई वांट दिस लाइफ. So we have to create opportunities. We have to create methods. Provision of basic health and education facilities. इंडिया में अभी हमारे यहाँ एजुकेशन में हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना है ही नहीं है. एवरेज जो हमारा पॉपुलेशन रेशियो है, वी कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज. अगर यहाँ पे हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैरामेडिक्स, टीचर्स, रिसर्च पीपल, दे कैन, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, and they can create huge number of jobs. तो अगर हम बेसिक हेल्थ, हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 3.5% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, हम इसको 6% कर दें, तो सडनली जो 3% या 2.5% एक्स्ट्रा आएगा, दैट विल क्रिएट मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स. सो दैट इज हाउ द जॉब्स विल जनरेट. तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं इस पे काम नहीं कर रही है. देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, वेज एम्प्लॉयमेंट थ्रू मनरेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. कल हम एसएचजी के बारे में बात करेंगे कैसे वर्क करता है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम जो रूरल पुअर वुमेन है, लोअर इनकम ग्रुप की है, उनको मिल सकता है. देन डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स. व्हाट आर अर्बन? रूरल एरियाज विद अर्बन फैसिलिटी. अब मान लीजिए एक विलेज है, रिलेटिवली बड़ा विलेज है, यहाँ पे क्या है, पीपल आर लिविंग दिस विलेज एंड गोइंग टू अ नियर टाउन.
छोटा बड़े टाउन में जा रहे हैं, अगर हम जो भी ये टाउन का मेन फैसिलिटीज है हम इस विलेज में प्रोवाइड कर दें, क्यों जा रहे हो, अच्छा स्कूल चाहिए, ठीक है बना देते हैं, कॉलेज चाहिए, ठीक है बना देते हैं, एक ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, चलो ट्रेनिंग सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना देते हैं, यू नो, आईटी, गुड आईटी इंटरनेट कनेक्टिविटी दे देते हैं, देन यू नो मंडी, ओके मंडी का एक सेंटर बना देते हैं, ओके, देन वट एवर यू नीड, तो ये सारा हम बना देंगे, गवर्नमेंट ऑफिस बना देंगे इनको। तो जब कर देंगे तो फिर द यू नो motive to move to a town is defeated, and this is a village but it has a urban facility, so that will call urban centers. So government is envisaging that instead of creating or instead of ensuring कि भी rural area से लोग urban area में ना move करें या कम move करें, people will move, but you can create the facilities, and the facilities are created, then things will change. तो हमारा एक पूरा का मिशन था provision of urban amenities in rural areas. This was idea which was conceptualized by APJ Abdul Kalam. ओके, तो हम कुछ ये सब करेंगे तो चीजें डेवलप होंगी, एंड वंस दिस विल डेवलप थिंग्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑल द एरिया, ऐसा नहीं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, बट द काइंड ऑफ डिमांड दैट वी नीड इन इकोनॉमी इज मैसिव। हमारी जो कैपेसिटी है और जो हमारे डिमांड है इकोनॉमी की, बहुत उसमें डिफरेंस है। वी हैव टू फोकस ऑन द ऑगमेंटेशन ऑफ द कैपेसिटी एज वेल। ओके, सो दैट इज हाउ। सो आपने जीडीपी के सेक्टर्स देख लिए, सेक्टर्स इवॉल्व कैसे हुए, इंडस्ट्री क्यों ग्रो नहीं, सर्विस क्यों ग्रो किया, इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो किया, ये एक अगला सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप खुद सोचिए। जस्ट थिंक दैट व्हाई डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नॉट हैपन इन इंडिया, and I'll be discussing this question probably in coming lectures, maybe tomorrow if possible. Okay, then we can divide the sectors also, organize sector क्या हो गया, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट लॉज है, सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन बेनिफिट है, इंश्योरेंस बेनिफिट है, टीए है, डीए है, या फिर अच्छी जॉब के साथ साथ आपको यू नो यू नो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, फॉर्मल प्रोविजन प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज के अंडर में होगा। हेंस द एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है एंड सिक्योरिटी यहाँ अच्छी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट, छोटा मोटा है, लो पेड, इरेगुलर है, सीजनल नेचर ऑफ वर्क है, यू आर अ पेडी ट्रेडर, आप छोटा सा दुकान खोले हुए, यू आर अ स्मॉल शॉपकीपर, यू आर अ वेजिटेबल वेंडर, दे एम्प्लॉय मोर देन 80% इंडिया, ऑलमोस्ट जीरो प्रोटेक्शन है इनका, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर है वो पूरा पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ओके, बॉन्डेड लेबरर्स, यू नो मिडवाइफ, डोमेस्टिक वर्कर्स, बार्बर्स, आपके घर में जो मेड्स आती हैं, वो सारे लोग अनऑर्गेनाइज है। इनका सोल सिक्योरिटी क्या है, 2 दिन नहीं आया आप पैसा काटने को तैयार हो जाते हो। ओके, 5 दिन अगर नहीं आया तो अरे दीदी आप आती नहीं, हम पैसा काट लेंगे। वो ये गवर्नमेंट जॉब में आप 5 दिन नहीं जाओगे तो सैलरी कटेगा क्या, आपको लीव ही इतनी मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब में आपको साल भर में 25 एक महीने की लीव मिलती है, इवन इवन इफ यू डोंट गो, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आप 2 दिन होता है तो आप काटना स्टार्ट कर देते हो। सो बिकॉज इट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे हैव लिमिटेड, गवर्नमेंट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट एक रूल बोले कि भी हर जो भी हाउस मेड या काम कर रही है उनको सब लोगों को पेंशन, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो जो अभी आपका, जैसे मान लो आप मेड को 4,000 रुपए देते हो, तो आपको 500 रुपए और देना पड़ेगा, एंड दिस विल गो इन आवर मे बी पेंशन अकाउंट। ओके, आप उनको उनको सिर्फ 5 डेज वर्क करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का गवर्नमेंट रूल बना दे, तब आपको मैं खुद ही सारा काम कर लूंगा। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट द प्रोडक्शन इज नॉट देयर, और ये काफी नंबर इनका ज्यादा है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन, बट दे हैव टू क्रिएट पोटेंशियल बाय इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी या इकोनॉमी कैपेसिटी के थ्रू ये इंप्रूव। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहां प्रोडक्शन और लेबर की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल। आर्टिकल 15, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर। ओके, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज कैन फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, ताकि वो बार्गेन कर पाए अपने जॉब्स, अपने उसके लिए, राइट्स के लिए। दे शुड नॉट बी फोर्स लेबर, दे शुड नॉट बी चाइल्ड लेबर। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दीज आर फंडामेंटल राइट्स, एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर इनवायलेबल। इनवायलेबल मतलब ये सैक्रोसैंक्ट है, इनको वायलेट अगर किया जाएगा तो पर्सन हैज अ रेमेडी टू द कोर्ट, वन कैन गो टू द कोर्ट। ओके, सिमिलरली वी हैव अ न्यू काइंड ऑफ आर्टिकल, पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट विल एंडेवर टू इंश्योर कि ये सारा करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम वेलफेयर स्टेट क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट कहेगी कि हम राइट टू वर्क करने का कोशिश करेंगे। नाउ दीज आर नॉट राइट, इट इज जस्ट अ मे बी विजन कि हम फ्यूचर में करेंगे। वी विल इंश्योर दे शुड नॉट बी एनी इनइक्वालिटीज,
will ensure that there should be just or human condition of work, maternity benefit मिलना चाहिए वुमेन को, वेज अच्छा मिलना चाहिए, ओके, जॉब में टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, यू शुड बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ इट। ये सारा हमारा एक विजन है जो हम देना चाहते हैं। उसमें बहुत कुछ मिल भी गया, बहुत सारा नहीं मिला है। इन मेनी ऑफ द विजन थिंग्स दैट वी हैव रीच्ड अ बिगिनिंग लेवल। ओके, देन एट द प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, तो गवर्नमेंट ने इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ब्रॉट अ न्यू लॉ इन 2008। हियर यू कैन गेट द प्रोटेक्शन if you have past 14 years of age, you can give self declaration, और यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिशन में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इसमें आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन करती है, आपके नाम से अकाउंट खोल देगी, एंड गवर्नमेंट विल आस्क यू आल्सो टू कंट्रीब्यूट, और इक्वल कंट्रीब्यूशन, मतलब गवर्नमेंट कहेगी 1000 रुपीज तक आप कंट्रीब्यूट करोगे, 1000 रुपीज हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस 2000 विल गो इन योर पीएफ अकाउंट। ये एनुअल है, ओके, छोटा ही है, बट द इंटेंशन इज कि कुछ नहीं से कुछ बेटर होगा। Okay. So then you have life and disability cover, health and maternity benefit, old age protection। तो ये सारा गवर्नमेंट बेनिफिट कर रही है, गवर्नमेंट वांट्स, बट द प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है। जब हम लोग बजट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी है। गवर्नमेंट हैज अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव ह्यूज रिसोर्सेज, एंड इंडिया में क्या वेलफेयर बजट, इंडिया का बहुत सारा वेलफेयर बजट खर्च हो जाता है पॉवर्टी एलिवेशन में, सोशल जस्टिस वेलफेयर में, वहां पर कम होता है इन कंट्रीब्यूशन टू देयर जीडीपी। सो दैट इज वेयर द फोकस इज। गवर्नमेंट का फोकस है कैसे ही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कैसे हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, सो दैट दे कैन वर्क एज पर द बेनिफिट। द अदर स्कीम्स लाइक बेनिफिट फॉर आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम। So they have in multiple government schemes which are mainly there to protect the unorganized sectors. Then we have public and private sector, already discuss किया मैंने। Public sector क्या होता है? Which are owned, government owns the asset, provides the services, welfare is the main objective. Okay, facilities क्या क्या होंगी? Again, where should be public sector and where should be private sector? Again ये बहुत एक basic सवाल है, which it depends. There is a basic philosophy which is used. वो ये कहा जाता है कोई भी सेक्टर जहां जो welfare driven है, that should be in the control of public sector. Areas where private can do better should be given to private sector. Okay, so और degree of control कितना होना चाहिए, again that government should decide. Government should give a free hand to the private people. So आप infrastructure develop करना हो, irrigation करना हो, public health, education, here there is a complete service driven initiative or motive. तो यहाँ पे private sector का जो रोल है शायद उतना अच्छा नहीं होगा, because private sector is highly profit driven. Social security through welfare scheme, subsidy program, etc. Private sector ownership of asset, delivery of services, okay, in the hands of private sector, driven by profit motive. Okay, government regulates government regulates private business through rules and regulation. तो गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है प्राइवेट सेक्टर को बाय रूल एंड रेगुलेशन। द आइडिया इज दैट गवर्नमेंट को ये पता है ये प्राइवेट सेक्टर ऐसे वैक्यूम में वर्क नहीं कर सकता है, सो दे विल क्रिएट मे बी अ फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट, दे विल आल्सो इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट दे विल टेक टैक्सेस, दे विल से you have to follow the compliance standards, you have to follow these rules and regulations, and that is how private sector can grow. Okay, so ownership of asset में हमारा ये categorization है। So that completes sector of the economy. There are certain questions you can see here. Okay, इनको देख लीजिएगा, you can submit. So that completes today's lecture. If you have any question, you can ask me. आप कुछ भी क्वेश्चन हमारा पूछ सकते हो।